dear students. How are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the very first session of Science Class 3rd, chapter number 1, that is about living and non-living. So students, in this session, we will learn and have a very detailed description of the living and non-living things. Alright, so let's start the chapter. There are many things in our surroundings. Some of them are alive, while others are not. और जैसे कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ें अलाइव होती हैं एंड कुछ अलाइव नहीं होती है। वी टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स आर अलाइव, यानी कि व्हाट दे हैव लाइफ। लिविंग थिंग्स के अंदर लाइफ होती है। वे आर मेड बाय द नेचर, नॉट बाय ह्यूमंस। लिविंग थिंग्स नेचर के थ्रू बनाई गई है, ना कि ह्यूमंस के। अनलिविंग थिंग्स वो सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ग्रो कर सकती हैं, दे कैन मूव एंड दे कैन रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग। के साथ साथ लिविंग थिंग्स ईट, ब्रीथ, reproduce and can change over the time. Example, animals, plants, fungi, even small bacteria भी living things के examples हैं. Well, non-living things are the objects that do not have life. वो सारे objects जिनके अंदर life नहीं होती है, they are called non-living things. They don't grow. Non-living things ना तो grow कर सकते, ना ही खुद से move कर सकते हैं, and ना ही वो react करते हैं अपने environment के towards, जैसे कि एक living being कर सकते। Things we have like rocks, water, air, even हमारे जो toys और books हैं, they are also non-living things. Now, first of all, we have the feature that is living things move. Living things क्या कर सकती हैं? Move कर सकती हैं. So humans and mostly land animals. Human beings and जो ज़्यादातर land animals हैं, वो क्या करते हैं? Walk, run and jog कर सकते हैं अपने feet के through. कुछ land animals हैं like snake, snail and काफी सारे insects जो कि crawl करते हैं. Then most of the insect birds move करती हैं by flying because they have wings. अपने wings and legs का use करके they can move or they can fly. Then if we talk about fishes, fishes water में swim करती हैं अपने fins के through. And they all move searching for food and shelter. ये सभी living beings move करते हैं अपने लिए food and shelter को search करने के लिए. Living things move on their own will. Living things अपनी खुद की will के according move करते हैं. They can start or stop when they want to. इन्हें जब मन करे तब ये start कर सकते हैं, जब इनका मन करे तब ये रुक सकते हैं, अपने हिसाब से move कर सकते हैं. A fly or a frog. एक fly या जो frog है वो भी क्या one place to another move करता है. Plants also show movement. Plants भी movement show करते हैं but in a special way. For example, sunflower. Sunflower क्या करता है? It turns towards the face of sun. Sunflower अपने face को sun की towards turn कर लेता है. It changes. Sunflower अपनी direction को sun की direction के साथ change करता हुआ चलता है. Then if we talk about movement in the leaves of mimosa or touch me not plant, जो touch me not plant है जिसे हम mimosa plant भी कहते हैं, उसकी लीव्स को भी जब हम टच करते हैं तो वो सारे लीव्स हमारे फिंगर के टच से ही क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है. ये भी एक टाइप ऑफ मूवमेंट है जो शो किया जाता है बाय द प्लांट्स. ऑल द ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो टुवर्ड्स द सनलाइट ग्रो करते हैं. देन अ लोटस फ्लावर क्या करता है? सनराइज के टाइम पे ओपन हो जाता है एंड नाइट के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे क्लोज हो जाता है. These are some special type of movements which are shown by the living things known as plants. Now, the period for which a living thing lives is called a lifespan. वो उतना टाइम पीरियड जितने टाइम पीरियड के लिए एक लिविंग बीइंग सर्वाइव करता है, लिव करता है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. अगर बात करें एलिफेंट की तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स तक का एंड टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन होता है फॉर अबाउट 250 ईयर्स. ऑलराइट. Now then we have second feature, that is what कि living things feel and react. Living things क्या कर सकती हैं? Feel and react कर सकती हैं. तो ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स, इन सभी के पास कितने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्केल. ऑलराइट. वर्म्स एंड इंसेक्ट्स के पास भी 2 to 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ये भी क्या कर सकते हैं? दे कैन फील द थिंग्स
एंड द चेंजेस अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ सेंस। एंड अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके सभी लिविंग बीइंग अपने सराउंडिंग में आने वाले चेंजेस को फील कर पाते हैं एंड देन रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यूज है सेंसेस, ये अपने सेंसेस को यूज करते हैं फूड के लिए, फूड को सर्च करने के लिए, या किसी डेंजर यानी किसी खतरे को सेंस करने के लिए। देन ऑन फीलिंग द prick of a thorn, a child pulls away his or her hand quickly। जैसे एग्जाम्पल गिवन है, जब आप एक थॉर्न के प्रिक को फील करते हो, जैसे आपको काटा या थॉर्न फील होता है, तो आप तुरंत अपना वहां से हाथ हटा देते हैं, बिकॉज यू आर एबल टू फील इट। एंड जो आपने वो अपना हाथ वहां से पुल किया, दैट इज अ रिस्पॉन्स व्हिच यू हैव गिवन। इफ यू टच एन इंसेक्ट, इसी तरीके से जब आप एक इंसेक्ट को टच करते हो, इट रन्स अवे, वो वहां से भाग जाता है। द स्मेल ऑफ फूड, एक फूड की स्मेल जो होती है फ्लाइज एंड आंट्स को अट्रैक्ट करती है। मॉस्किटोज भी क्या कहते हैं, लाइट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। तो द सेंस ऑफ फीलिंग, ये जो सेंस ऑफ फीलिंग है ये सभी में होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स के केस में ये सेंस ऑफ फीलिंग थोड़ा वीक होता है एज कम्पेयर टू दी एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अगेन मिमोसा प्लांट, दैट इज टच मी नॉट प्लांट, इनकी लीव्स फोल्ड हो जाती है व्हेन समवन टचेस देम, राइट। अ प्लांट टर्न टुवर्ड्स द सनलाइट, इस तरीके से प्लांट भी क्या सनलाइट के टुवर्ड्स अपने फेस को टर्न करता है। तो व्हाट इज दैट, कि ये सभी अपने सराउंडिंग में चेंजेस को फील करते हैं एंड देन द रिस्पॉन्ड। यू कैन सी यहाँ पे बॉय है हु इज फीलिंग कोल्ड, मॉस्किटोस लाइट पे जाके क्या अट्रैक्ट हो रही हैं, ये कॉकरोच है, दिस इज मिमोसा लीव्स। सो व्हाट आर दीज, ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं जो ये शो करते हैं कि लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड कर सकती है। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स में कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती हैं। अगर आप अपने डॉल को या अपने किसी भी टॉय को पिल के थ्रू प्रिक करेंगे, सो इट विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ पेन एंड इट विल नॉट बी हर्टेड। व्हाई? बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट फील और रिस्पॉन्ड, राइट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ भी कर सकती हैं एंड ब्रीदिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। लिविंग थिंग्स ब्रीद इन ऑक्सीजन, लिविंग थिंग्स एयर में से ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, राइट। ह्यूमंस और लैंड एनिमल्स, जितने भी ह्यूमंस एंड लैंड एनिमल्स है लाइक काउ कैट डॉग, ये सभी अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। देन फिशेस एंड कुछ ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, इनके पास स्पेशल ऑर्गन है नोन एज गिल्स, जिनका यूज करके ये एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। देन वेल्स एंड डॉल्फिन्स अपने लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करती हैं। इफ यू टॉक अबाउट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के पास कुछ एयर ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। बट देन प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग्स, so they can also breathe, and for their breathing what they have the small pores, ठीक है, present on their leaves। प्लांट्स की लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन्हें आप अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। एंड दीज टिनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। जैसे कि अब बाइसाइकिल ट्यूब ब्रीथ नहीं कर सकती है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एयर को पंप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। सो सभी लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, बिकॉज फूड हमें उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क। फूड ऑल्सो हेल्प्स देम, फूड लिविंग थिंग को वर्क करने के लिए, ग्रो करने के लिए भी हेल्प करता है। देन वाटर, वाटर नेसेसरी है उनके सर्वाइवल के लिए। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमन एनिमल्स को जो फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, या स्मॉल या डेड एनिमल्स के थ्रू मिलता है। दे टेक इन फूड एंड वाटर थ्रू देयर माउथ, ठीक है, क्या करते हैं, फूड एंड वाटर का इनटेक अपने माउथ के थ्रू करते हैं। ग्रीन प्लांट्स भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं एक प्रोसेस के थ्रू विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। एंड इस प्रोसेस के लिए ग्रीन प्लांट्स को वाटर, एयर एंड सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। देन वी हैव सम नॉन ग्रीन प्लांट्स आल्सो, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं लाइक मशरूम। ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, बट जो डेड या डिकेइंग मैटर होते हैं वहां से अपने फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि चेयर, बुक्स, दे डू नॉट नीड फूड, इन्हें फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो भी करती हैं। फूड हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो। फूड क्या करता है, लिविंग थिंग की हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेबी चाइल्ड, सी यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेबी चाइल्ड ग्रो कर रहा है एंड इट ग्रोज इनटू अ चाइल्ड देन इनटू एन एडल्ट। ये बेबी था, ग्रो करके चाइल्ड में डेवलप हुआ एंड चाइल्ड से एडल्ट बन गया, राइट। सी अ बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड एंड देन अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। सिमिलरली एक पपी है, पपी ग्रो करके डॉग में डेवलप होता है। चिक, चिक ग्रोज इनटू अ हेड। कैटरपिलर, कैटरपिलर ग्रो करके बटरफ्लाई बनता है। देन सीड, सीड ग्रो करके सीडलिंग, या जिसे आप बेबी प्लांट कहते हैं, दिस इज सीडलिंग और दिस इज सीड। सीड क्या बना, ग्रो करके ये सीडलिंग बना जिसे आप बेबी प्लांट भी कहेंगे। एंड देन फर्दर ये ग्रो करके क्या बन गया, एक प्लांट बन गया। तो इस तरीके से सभी लिविंग बींग्स में ग्रोथ होती है, बट नो लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकती, वो हमेशा सेम शेप एंड साइज की रहती है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बुक्स एक्सेट्रा, दे डू नॉट ग्रो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड। सभी लिविंग बींग्स अपने जैसे न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स अपने यंग वंस को, अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। फीमेल एनिमल्स अपने यंग वन को या तो बर्थ देते हैं या फिर एग्स ले करते हैं, जिन एग्स से इनके बेबीज हैच होते हैं। एग्जाम्पल बर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सभी एग्स लेइंग एनिमल है। देन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लाइक बेबी ब्लू व्हेल। ये एट द बर्थ टाइम पे ही 7 मीटर्स लॉन्ग होती है एंड अराउंड 2 बिग एलिफेंट्स के बराबर हैवी होती है। देन दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ये फिर अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। ऑलराइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल काउ, टाइगर, डॉग्स एंड एलिफेंट्स, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, दे डू नॉट ले द एग्स। देन इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स हमें सीड्स प्रोवाइड करती है एंड इन्हीं सीड्स के थ्रू न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन। देन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिन्हें आप उनकी स्टेम, रूट्स और लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि प्लांट भी लिविंग बीइंग है, सो दे कैन आल्सो बी they also have the ability to reproduce or to produce new individual plants. You can see over here, this is woman and her baby, this is hen and its chick, this is cat and its kitten, right? But non-living things cannot produce young ones of their kind. Non-living things अपने जैसे new individuals को या अपने young ones को produce नहीं कर सकते। The leaves on some trees, कुछ trees पे जो leaves है वो season में आने वाले changes के लिए respond करती हैं। जैसे कि the leaves of the tree shown in the picture are turning brown during autumn. Now, next we have what living things die. Next feature क्या है कि living things पहले birth लेती है, grow करती है, grow करने के बाद they become old and then they finally die. Alright? And die होने के बाद living things cannot move on their own, ना वो खुद से move कर सकती, ना ही फिर वो feel, react, breathe, टेक फूड, ग्रो और रिप्रोड्यूस। जो भी लाइफ प्रोसेसेस अभी तक एक लिविंग बीइंग के अंदर होते थे, वो सभी बंद हो जाते हैं व्हेन इट डाइज। ऑलराइट। वी कैन रिकॉग्नाइज लिविंग बीइंग। अब हम किसी भी लिविंग बीइंग को पहचान सकते हैं, ठीक है, कैसे? इन फीचर्स के थ्रू। जो फीचर्स हम डिस्कस करें हमने, इनमें से अगर कोई भी एक या सारे फीचर्स किसी के अंदर है, तो आप उसे एज अ लिविंग बीइंग कंसिडर कर सकते हैं। For example, the chest of a sleeping dog moves up and down because of breathing, so we can say that it is alive. ठीक है, एक स्लीपिंग डॉग, एक डॉग है जो सो रहा है और उसकी चेस्ट अप एंड डाउन अगर मूव कर रही है, दैट मीन्स व्हाट, कि वो डॉग ब्रीथ कर रहा है, एंड ब्रीथ कर रहा है दैट मीन्स अभी वो क्या है, अलाइव है। लेकिन अगर एक डेड डॉग ऐसा होगा तो उसके अंदर ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इट डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। एक डेड लिविंग बीइंग, एक डेड डॉग जो होगा वो ना तो खुद से मूव कर पाएगा, नॉट इट कैन फील, रिएक्ट, ब्रीथ, टेक फूड, ग्रो और रिप्रोड्यूस। नाउ दे हैव गिवन यू द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में यहाँ पे डिफरेंस गिवन है। सबसे पहले मूवमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए, तो एनिमल्स जो हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाई? टू सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर। बट प्लांट्स जो है, प्लांट्स फिक्स रहते हैं टू द ग्राउंड। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते ऑन देयर ओन।
सेकेंड डिफरेंस क्या है, डिपेंडेंट फॉर फूड। तो अगर अब हम बात करें डिपेंडेंट फॉर फूड की, तो एनिमल्स जो है प्लांट्स के ऊपर या किसी अदर एनिमल के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। बट प्लांट्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज ब्रीदिंग। तो एनिमल्स ब्रीथ करते हैं अपने कुछ ऑर्गन्स के थ्रू सच एज लंग्स, गिल्स एंड स्मॉल होल्स। बट प्लांट्स किसके थ्रू, प्लांट्स की लीव्स में देयर आर टिनी पोर्स प्रेजेंट जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेंस ऑर्गन्स। एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं सो दैट ये अपने सराउंडिंग्स को फील कर सकें एंड रिस्पॉन्ड कर सकें। बट प्लांट्स प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं एक्सेप्ट आपका जो टच मी नॉट या मिमोसा प्लांट जो है, उसके अलावा बाकी सभी प्लांट्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में कैसी इंटरडिपेंडेंसी है, लेट्स लर्न अबाउट इट। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। सी स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसे ही कहा जाता है इंटरडिपेंडेंसी। सी प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल, जैसे कि प्लांट्स जो है फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए। प्लांट्स उसके साथ साथ एनिमल्स को क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं टू ब्रीथ। एंड इन रिटर्न एनिमल्स क्या कहते हैं, एनिमल्स प्लांट्स की जो सीड्स है उनको स्प्रेड करने में फार एंड वाइड हेल्प करते हैं। ऑलराइट, दिस इज हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। उसके साथ साथ एनिमल्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। Okay, so the chapter is completed over here. This was a whole differentiation between living thing and a non-living thing. And then the difference between plants and animals and also their interdependency we have completed over here. Let's meet in the next session. Till then, keep learning and thanks to everyone.